Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We'll start with today's motivational session. So, welcome to Peak Academy. Our guest speaker for today is Dr. G. M. Naziruddin, and he has done his MSc Chemistry from Marathwada University, Aurangabad. I'll just give a brief introduction about him. He has done his MSc Chemistry from Marathwada University, Aurangabad, and he has done his B.Ed, MPhil, PhD from the University of Pune. He was also the principal as well as the head of Department of Chemistry from Pune College of Arts, Science and Commerce, and he has retired in 2015. So he has an overall teaching and research experience of around 42 years, and he's also a research guide for MPhil and PhD students in various universities. His research paper have been published in various national and international journals also. So he has participated in and organized various workshops, seminars, and conferences at national and international level. He is the editorial board member for 4 national and international journals, as well as life member for 3 chemical societies, and he is recipient of 4 awards. So his interest is not only for teaching the students teaching students subjects like chemistry, but he's also deeply interested in motivating and guiding students to the right path based on the values in the Quran and Sunnah. So hence Peak Academy has organized this session entitled Instilling Motivation: Lessons for the Student's Success by Dr. G.M. Naziruddin. Over to you, sir. At the outset, I'm thankful to Peak Academy in general and Mr. Pausif, convener of this particular lecture. Thank you very much once again for providing me this opportunity to talk to young generation, particularly students of 8 onward. Well, the title of the topic is very well. It is there in form of slides. Also, you can see instilling motivation lessons for student success. Next slide, please. Next slide, please. Should I change? Hello. Oh. Once you have decided your goals, my dear student and parents, if they are there, please, you have to decide first your goal on yourself. What you want to do. This is very very important. क्या करना है हमको पहले हम वो डिसाइड करें और फिर वो करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल यू कैन डू इट that attitude should be there that is called positive attitude don't think negative point from starting only अब वो तो बहुत मुश्किल है वो तो हम कर नहीं सकते कोई भी चीज दुनिया में पॉसिबल नहीं है सब इंसानों ने की or it is not necessary my dear students please remember that you should be very very intelligent no if you see as a teacher I am telling you I have seen in my class generally 5 to 7% students only intelligent remaining all 90-95% they do hard work and sometimes they bring good percentage they come with the brilliant result good result for, for because they have done hard work so hard work there is no alternative understand and if you are focused concentrate on your goal then you can achieve it now for example if suppose you want to become doctor you decide from 8th standard only planning you should do engineer you have to do that then if suppose you want to join is officer is say course is officer you want to become then you have to think in that direction only then if you want to become businessman you have to do things in that direction only understand so different goals are there not necessary that everybody should become doctor only that you decide your likeness then accordingly you have to go ahead and for every field my dear please remember hard work is a must and hard work means what three important points there determination dedication and devotion these three D's are very very important in our life to achieve the goal if suppose you don't have this
then you cannot do anything. And nothing is easy. Don't think that your goal you will achieve just by cakewalk. No, not at all. You have to give everything to achieve that goal. Understand? Otherwise, you cannot get it. First of all, determine. You should be determined. I have to do this. Finish. Then, second is you have to dedicate. Then you have to devote. Understand? Means what? You have to stop so many things. For example, dangerous thing nowadays for a student is a mobile. They are wasting lot of time on mobile. जो भी चीज आप से को कुछ हासिल नहीं हो रहा, देखिए आप उसको अरबी में एक अच्छा लफ्ज है ला यानी गुफ्तगू, जिससे हमको कुछ हासिल नहीं है। गुफ्तगू ऐसी कर रहे जिससे कुछ हमको मिल रहा नहीं। गेम ऐसा खेल रहे मोबाइल पे जिससे हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा, यानी ना तो हमारी लैंग्वेज अच्छी हो रही, ना तो हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छा हो रहा। बस हम वहाँ खुश हो रहे, मैंने इतने पॉइंट्स लिया, मैंने उतने पॉइंट लिया। इससे कुछ हासिल नहीं हो मेरे बच्चों, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप मोबाइल को बंद करके रख दो। ओनली यूज फॉर गुड पर्पस। अंडरस्टैंड? एंड गुड पर्पस, नो नीड टू टेल यू व्हाट आर द गुड पर्पस। रॉन्ग नाउअडेज अनफॉर्चुनेटली उस पे सब गलत चीजें ज्यादा बच्चा इस्तेमाल कर रहा हमारा बनिस्बत अच्छी चीजें लेने के। हालांकि वो अच्छी चीज भी है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल खराब चीज है, लेकिन उसके अच्छे फायदे उठाओ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कुछ कुछ मूवीज भी ऐसे होते हैं जो खाली इमेजिनरी होते। प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है प्रैक्टिकल लाइफ में। वो चीजें हम देखते हैं और वही करने जाते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग है और थियोरेटिकल लाइफ बहुत अलग है। तो बी प्रैक्टिकल। तो आपको डिटरमाइन होना चाहिए, बस ये करना है मुझे। फिर डेडिकेट करना पड़ेगा, वक्फ करना पड़ेगा अपने आप को लगा देना पड़ेगा अपनी जिंदगी, अपना टाइम। सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे सोने के निकालो आप, बाकी आप कैलकुलेट करो कि आपका वक्त किस चीज में गुजर रहा, किस चीज में अपना टाइम आप खपा रहे। दोस्त देखिए, सबसे डेंजरस चीज मैंने आपको मोबाइल बताया, दूसरी चीज आपको बताया मैंने टॉकिंग। अक्सर बच्चे दोस्तों के साथ बैठ के घंटों गुजार देते और अपना टाइम वेस्ट कर देते। और देखिए फिर इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करूंगा मैं इसमें, कि अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। अच्छी सेहत के लिए क्या है, ये बहुत कम लोग बोलते अपने लेक्चर्स में, खास बहुत सारी बातें बताते, लेकिन ये नहीं बताते कि अच्छी सेहत कैसी रखी जाए। अच्छी सेहत आती है बच्चों, आपको वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, और अगर आप मुसलमान हैं तो फजर की नमाज पढ़ना, ये मस्त है आपको। फजर की नमाज आप पढ़ेंगे तो आप देखिए आपको बहुत वक्त मिलता है बेटे, आपको वक्त ऐसा मिलता है, मैं क्या बताऊं आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम नमाज हमें सर्दियों में 6:30 बजे होती और गर्मी में 5:30 बजे होती। तो 5 बजे उठने का आप निजाम लगा दो अपने पास घर में। अभी मैं देख रहा हूँ पूना में माहौल कुछ ऐसा दिख रहा मुझे कि हर घर में लोग 1 बजे तक जागना तो मामूली बात होगी। 1 बजे के बाद में बच्चा भी सो रहा, केजी का बच्चा भी सो रहा, 8वीं का बच्चा भी सो रहा, 12 का बच्चा भी सो रहा, 1 बजे तक जागते रहते हो। 1 बजे तक जागने से क्या होता है, थक जाते हो और फिर सुबह देर से उठते, स्कूल को जाना है तो भागम भाग जाते और उनकी सेहत भी खराब होना शुरू होती। सबसे पहला काम ये कीजिए, आप सेहत को भी संभालिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं आप सब्जेक्ट में, लेकिन आप बुखार आ गया, आपको आपको वायरल हो गया, तो आपका डिफेंस पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए। नाश्ता, अगर अपनी माँ बीमार है, अपनी माँ नहीं उठ पाती है, तो आप खुद 8वीं 9वीं के बच्चे तो खुद नाश्ता बनाना चाहिए। मेरी नजर में अंडा तलने में क्या ऐसा जाता है, आपको क्या मुश्किल होती है? आप वो तल के खाइए, ब्रेड खाइए, 2 पीस ला के रखिए घर में, और चाय पी के फिर जाओ आप बाहर। अगर आप भूखे जाएंगे तो सुबह में देखिए, वी आर इन नीड ऑफ एनर्जी। आपने गाड़ी कितनी भी अच्छी लाए और उसमें पेट्रोल नहीं डाल रहे, गाड़ी चलेगी क्या? बहुत अच्छी गाड़ी आपकी, लेकिन पेट्रोल ही नहीं है उसमें, तो आपको क्लास में बोर हो जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और आप ऐसा ही अगर चलते रहा आपकी जिंदगी, वहां से कुछ तो खा रहे, वड़ा पाव खा ले रहे या आप फास्ट फूड खा ले रहे, वो फास्ट फूड जंक है, वो अच्छी बात नहीं। याद रखो मेरी बात, हमारे पास के जो फूड है इंडिया के, बहुत रिसर्च के बाद बने हुए वो, इसलिए वो उसको पब्लिश नहीं हुआ, वो वर्क एडवर्टाइज नहीं हुआ वो। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको मेरा तजुर्बा बोल रहा हूँ आपको मैं, कि मैंने जो नाश्ते के लिए कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहा, मैं नाश्ता खुद करके जाता रहा, तो मैं बीमार कम हुआ। बहरहाल बीमारी आना वो अल्लाह की तरफ से होता, वो तो हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। लेकिन आप देखेंगे कि ये चीजें आप करेंगे तो बीमार कम होंगे।
आप ताकतवर रहेंगे, और ताकत है आपके पास तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते। ताकत ही नहीं है तो क्या बैठेंगे, उसको क्लास में समझ में नहीं आता, भूखा प्यासा गया घर में से। तो आप ये खुद करना, बच्चों को तालीम दो। अगर पेरेंट्स बैठे हैं तो भाई माँ नहीं उठ पाई, उसकी बीमारी है, कुछ परेशानी है, तो वो खुद बना के खा के जाने की उसकी कैफियत है ना। 5 बजे उठे तो सब पॉसिबल है, चाहे 7 बजे का स्कूल क्यों नहीं होता, चाहे 7:30 का स्कूल क्यों नहीं होता, चाहे 9 का स्कूल क्यों नहीं होता, आपकी स्टडी भी होती। अगर आपका 9 बजे तक स्कूल है तो आपकी स्टडी बहुत शानदार होती सुबह में। तो याद रखिए, आप रात के पढ़ने से सुबह का पढ़ना बेहतर है। आप सोकर आप उठेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपकी पढ़ाई होगी। इसके बाद, ये सब चीजों के बाद, एक आप अच्छे इंसान भी बनना है आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप ये स्लाइड में आप देख रहे, वी हैव टू हैव गुड कैरेक्टर। कैरेक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कैरेक्टर को लॉस हो गया तो आप बुजदिल इंसान हो जाते, आपकी नजर झुक जाती। देखिए मैंने उसके इसमें लिखा, एक प्रभाव भी लिखा, जो जल्दी लोग बोला करते, हेल्थ इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। Sorry, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. However, if character is lost, everything is lost. तो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कैरेक्टर। जो कैरेक्टर का मजबूत आदमी होता, वो बहादुर होता लाइफ में, वो उसके अंदर बुजदिली नहीं आती। जब आदमी कैरेक्टर लॉस कर देता, इसमें बहुत सारी बातें आती है। कैरेक्टर, मेरे पास वक्त नहीं है आपको समझाने के लिए होता, आप समझ गए होंगे, आर्टरी के भी होंगे, तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता। तो आप ये कैरेक्टर को लॉस मत करो अपने। और आज के जमाने में आप देखेंगे, मटेरियलिस्टिकली देयर इज अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन आवर लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग। हाउएवर, साइमल्टेनियसली देयर इज ग्रेट स्पिरिचुअल एंड मॉरल डाउनफॉल आल्सो। मॉरली भी हमको स्ट्रांग रहना है। जो मॉरली अच्छा रहता बच्चा, जो अखलाक का अच्छा रहता बच्चा, अल्लाह की मदद उसको आती और उसको चीजें जल्दी याद होती। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे, ये जो पीरियड होता है आपका, वो डेंजरस पीरियड था। इसमें टाइम लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी कॉन्सेंट्रेट होना आपके गोल के ऊपर बस। सीधी नाक से, एक नाक से आप सीधा चलना चाहिए, वो हासिल करना है मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर इससे आप डेविएट हुए, समझे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड इन इस्लाम। और अच्छी सोसाइटी के लिए ये कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने लेके आया हमारे पास। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, ये आप छोड़िए। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता लोगों का, इसमें घंटों लड़का हमारा वेस्ट कर देता। यहाँ तक कि अब तो इतनी गिरावट आई कि माँ बाप भी बोलते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई है, उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स दैट दिस एटलीस्ट इन स्टूडेंट लाइफ वी शुड ट्राई टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली क्या जरूरी है? स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड। We are accountable for our deed, small or big, in front of God on Judgment Day. These concepts are only driving force to implement morals. All these concepts are mentioned in various religious books. As a human being, we have forgotten all those concepts, and purely materialistic approach is followed by majority. To implement ethics, spiritual progress of human being is a must to curb the present materialistic and selfish approach. Now, ये मैंने पॉइंट एक अलग उठाया, ये इस पे बात नहीं करते लोग ज्यादातर। देखिए आप क्यों नहीं करते बात, क्योंकि ये वो समझते जरूरी नहीं है। तो मेरे बच्चों, देखिए आप अगर अखलाक के अच्छे रहेंगे तो आप खुद अच्छे बनेंगे। समझो आप डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके अखलाक अच्छे नहीं है, आप सेल्फिश आदमी है, आप जो है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। आई थिंक मटेरियलिस्टिक का मतलब आप समझ रहे, पैसा ही बस उसके पास अहम होता, बस उसको कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो डॉक्टर एक कसम लेता जब उसको डिग्री मिलती कि भाई मैं सेवा करूंगा, मैं खिदमत करूंगा लोगों की। लेकिन वो क्या करता है, जब डॉक्टर बन जाए तो वो बोलता मेरे पैसे में कैसे अब कमाऊं ज्यादा में ज्यादा। तो आपको डराने का काम करता, पहले डरा देता आपको, हालांकि आपको बीमारी कुछ नहीं रहती। एक साहब मेरे दोस्त थे, वो गए तो वो देखा कि ये अच्छे कमाने वाले आदमी है, तो उनको बताया कि तुम्हारा स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैनिंग को, उनको जुकाम हुआ था, हालांकि खाली सर्दी हुई थी। नहीं, बोले इट इज क्वाइट पॉसिबल सम इन्फेक्शन विल बी देयर इन योर ब्रेन, सो आई वांट टू स्कैन। तो 7,000 रुपये उन्होंने दे दिए बेचारों ने, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो आप डरिए मत ऐसा डॉक्टर से खामुखा के, या गए आप तो हार्ट का आपका चूंकि ब्लड प्रेशर मेजर करेगा कि 100 130 हो गया, 125 हो गया, तो बहुत डरा देगा आपको। क्यों डरा रहा वो? ताकि उसको पैसे मिले। तो ये ऐसा डॉक्टर
हमारे काम का नहीं है। ये डॉक्टर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इंजीनियर क्यों हुआ, ऐसा अपना पुलिस का ऑफिसर क्यों हुआ, क्योंकि उनके पास पैसा है, पास हो गया पूरा। वो चाहते नहीं लोगों की खिदमत करे। हालांकि ये सब लोग अपॉइंटमेंट जब लेते तो ये इसमें उनके पास ये खत्म ली जाती, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे हमारा मेंबर हो, ये सब खत्म लेते कि हम जनता की सेवा करेंगे, हम जनता के नौकर हैं। लेकिन वो क्या करते हैं आप देख रहे खुद, आप समझदार लोग हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लाइड बताना चाहता हूँ, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब जब ये ऐसे हमारे लोग जमा हुए हमारी सोसाइटी में, उन्होंने अपना गोल तो हासिल कर लिए मेहनत करके, लेकिन उनका कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर उनका बिल्ट नहीं हो गया। अब ये कैरेक्टर क्यों नहीं बिल्ट हो रहा, देखिए आप, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी लॉस होगी उनके पास से। अभी जो ये जितने भी लोग हैं आप देखेंगे जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं अपनी जिंदगी में, उनके पास सिर्फ पैसा ही अहम रहता, उनके पास किसी की कीमत नहीं है। यानी इवन दे कीप देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम। आपने देखा होगा ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं आज कि अपने माँ बाप को, वो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, एक साहब को मैंने देखा, मगर माँ बाप को साथ रखते नहीं, क्योंकि वो बोर हो गए उनसे। वो बोलते हैं बहुत उनको तकलीफ होती है। और मेरे बच्चों, आपको भी ओल्ड एज आना है, आप देखेंगे कि ओल्ड एज में थोड़ा सा आदमी परेशान रहता, तो उसको इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप पेरेंट्स की खिदमत करो जहां तक हो सके, और उनका भी फर्ज है कि बच्चों का ख्याल रखे। आज क्या देखिए, हक हक एक होता और एक ड्यूटीज होती, दोनों अदा होना चाहिए तो गाड़ी अच्छी चलती। हर आदमी ने अपना हक मांगा सिर्फ कि मुझे हक दो मेरे को बस, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, ये भी बुरी बात है। तुम कुछ भी हो, लॉस हो आपका, परेशान हो आपको, तो ये भी माँ बाप ने किया तो गलत बात है। और ये भी गलत बात है कि सब बच्चा उनको पूछ ही नहीं रहा, छोड़ के भाग जा रहा। यहाँ आनंद भी एक मुकाम है, तो वहां पे एक किस्सा ऐसा देखने में आया मेरे को कि एक बेचारी बूढ़ी को बेटे ने अपने वहां पे आनंदी के पास लाके छोड़ दिया और बोला मैं ये तो, और वहां से भाग गया। वो बेचारी रात को 11 बजे तक बैठी रही। तो दूसरी बूढ़ी उसके पास आई और उसने पूछी काय झाला, तो ते पोरगा आला नाही अजून, तो ते येणार नाही बोले, मी 2 वर्षापासून वाट पाहते त्याची। आप समझ रहे होंगे मराठी थोड़ी बहुत महाराष्ट्रियन है तो, कि मैं 2 वर्ष से उसकी राह देख रही हूँ, अब तक नहीं आया, तो तेरा बेटा भी आएगा नहीं, तुम मस्त यहाँ रहे अब आनंदी में, परेशान मत हो जाओ। तो बेटे मैं जो बोलना चाह रहा था आपको कि ये ऐसे बच्चे क्या काम के, ऐसे बच्चे क्या काम के जो अपने ओल्ड पेरेंट्स को आनंदी में यानी तो ओल्ड एज होम में डाल के भाग जा रहे और उनको देख रहे नहीं बिल्कुल। तो क्या फायदे कैसे बच्चे। उसमें एक मुझे शेर याद आ गया कि बड़ा अच्छा शेर एक शायर ने कहा, तो आपको थोड़ा सा मैं साइंस से थोड़ा शायरी की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। हमने जो खत लिखा इंसानियत के नाम, हमने जो खत लिखा इंसानियत के नाम, डाकिया ही मर गया पता ढूंढते ढूंढते। तो आज इंसानियत आप तलाश करो, आपको मिलेगी नहीं। लोग बड़ों का अदब नहीं करते, आज बुढ़े से बात करते। ये सब क्यों हो रहा, क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट हट गया। लोग समझ रहे हैं जिंदगी ही असल है बस, हालांकि अल्लाह ताला उसका रिवार्ड देने वाले। आप किसी से मुस्कुरा के बात करें भी तो ये इबादत है। लोग सिर्फ नमाज पढ़ने की इबादत समझते, लोग सिर्फ मंदिर में जाने को इबादत समझते, लेकिन अगर आप किसी से अच्छी बात करें तो ये भी इबादत है। देखिए आप, इसको लोग गाफिल हो गए आज। आपने मुस्कुरा के किसी को वेलकम किया, ये भी इबादत है। और बाद वक्त अच्छी बात से बीमारी अच्छी हो जाती। आप हमको बीमारों की अयादत करने का हुक्म क्यों है, वो इंसानियत है, वो भी है कि उसको जाके आप दिलासा दो, उसको जाके आप मोटिवेट करो कि भाई तुम अच्छे हो जाएंगे, साहब क्यों फिक्र कर रहे, उसकी तबीयत अच्छी हो जाती। देखिए आप, ये मोटिवेशन का फायदा होता। और ये सब चीजें अच्छे इंसान बनने के लिए नॉलेज ऑफ रिलीजन इज ए मस्ट। लेकिन एक मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता, इवन अमंग मुस्लिम्स मेजॉरिटी ऑफ देम रीड कुरान विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो रहा है, they do not have perfect knowledge of Islam, even though such a good book is available, but they don't want to take the knowledge from the book, which is very very authentic. It is a God revealed book. वो रिवील किया अल्लाह ने उसको पैगंबर पे दिया, तो ये बातें हम भूल गए। और और इसलिए क्या हो गया, या संस्कार होना चाहिए, घर के संस्कार होते हैं। घर के संस्कार देने को भी अब कोई नहीं है, माँ बाप भी भाग रहे पैसा कमाने को, तो बच्चा नौकरों के भरोसे पल रहा।
तो उसके अंदर संस्कार, किसी की दुआ लेने से किस्मतें बदल जाती है। तो ये बात का आप ख्याल रखिए, साथ साथ डॉक्टर बनने के, साथ साथ इंजीनियर बनने के, साथ साथ ऑफिसर बनने के, जो आपका ख्वाब है, अल्लाह आपका ख्वाब को पूरा करे। लेकिन सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं होता, लेकिन आप सोचना जरूरी है मैं क्या क्या बनना है, फिर उस पर उसको स्टेप से जाना है और नेक बन के जाना है। तो आप आपके लिए भी अच्छे हैं, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छे हैं, और उसके बाद आप दूसरों के लिए भी अच्छे हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर रहे, तो कुछ फायदे नहीं हमको ऐसे डॉक्टर, हमारी सोसाइटी की क्या काम क्यों? खिदमत की बजाय वो जहमत हो गए, खिदमत नहीं कर रहे, वो उल्टा हमको तकलीफ दे रहे हमारी सोसाइटी को। लोग रो रहे, वो उनको एडमिट करने को तैयार नहीं, पैसे भरो पहले, ऑपरेशन नहीं कर रहे, पैसे का रसीद बताओ बोल रहे। कितने लोग इंसानी से गिर गए देखिए आप। हालांकि ये सब ट्रस्ट के हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का मतलब होता है खिदमत। ये ट्रस्ट बनते काय के लिए, इनको गवर्नमेंट टैक्स में छूट देती, क्योंकि ये खिदमत करे लोगों की। आप जो वाजबी पैसा लो ना, डरा डरा के क्यों पैसा ले रहे लोगों से? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कुरान का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर एक मुस्लिम डॉक्टर है, समझिए उसको कुछ मालूम ही नहीं, तो वो अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। उसको संस्कार भी किसी ने दिए नहीं, घर में कुछ बताया भी नहीं उसको अच्छी बातें। बस ये बताया कि भाई तू डॉक्टर बन, बस तेरी जिंदगी उत्तिश है। ये नहीं बता रहे कि भाई सच बोल हमेशा, ये नहीं बता रहे कि बड़ों की खिदमत कर, ये नहीं बता रहे कि नेक रहे, रिश्वत मत ले, लोगों को डरा के पैसा मत कमा। ये संस्कार का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा लफ्ज है वो, संस्कार। संस्कार का मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चे को अच्छी तरह डेवलप करो, समझे ना आप? मारपीट से बच्चा अच्छा नहीं होता, याद रखिए आप। समझा के उसको चेंज कैसा करना, ये हमने कोशिश करना चाहिए। और आप उसके हमदर्द है, ये उसके दिल में आना चाहिए। टीचर भी, बात टीचर बहुत मारते हैं, अब तो खैर मारना अलाउड ही नहीं है। अभी एक दूसरी बीमारी शुरू हो गई हमारे हमारे पास, कि टीचर ने मारना ही नहीं, तो डर ही नहीं है बच्चों को। फेल भी नहीं करना 9वीं तक, मारना भी नहीं, तो अब क्या करेगा बच्चा? कैसे अच्छा बनेगा? बोलिए आप। देर से जाता, कुछ नहीं करना, ये भी टू मच है। ये भी टू मच है कि उसको बिल्कुल लाल पीला कर दे रहे मार के घर में। बाहर गया तो मार दिए, कहीं बात किया तो मार। उसको समझाओ, और नहीं समझा तो फिर सजा भी देना है अपने को। लेकिन शुरू से ही उसको मारपीट करके उसको सुधारने की कोशिश मत करो। तो आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो आपको 3 बातें मिलेंगी उसमें। एक है वहदत, दूसरा है रिसालत, तीसरा है आखिरत। ये तीनों बातें बहुत अहम है, मैं इसका मतलब समझाया था आपको। क्योंकि वहदत का मतलब होता है गॉड इज वन, रिसालत का मतलब होता है रसूल को मानना, और आखिरत का मतलब होता कि हम अकाउंटेबल है हमारे डीड के लिए। क़यामत आएगी, ये दुनिया खत्म होगी, और हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। अब ये 3 कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब कौन से अमल अच्छे हैं, आप कैसे मालूम करेंगे? पहला बात तो अल्लाह को एक मानो, ईमान लाओ। दूसरा है रिसालत। रिसालत का मतलब होता है रसूल ने जो कहा वो बात हक, वो बात सच। तो खुदा की डेफिनेशन को बहुत अच्छा कुरान में बयान हुआ। सूरे जैसे अल इखलास आप पढ़ते हो, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका मतलब है क्या? से ही इज अल्लाह, द वन एंड ओनली, अल्लाह द इटरनल एब्सोल्यूट। ही बिगेट्स नॉट, नॉर इज ही बिगॉटन। ना वो किसी ने उसको पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया। एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम, उसके वैसा कोई भी नहीं। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, इटरनल है, एब्सोल्यूट है। लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना उसने किसी को पैदा किया। एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम, उसके वैसा कोई भी नहीं, अल्लाहु समद। बड़ी प्यारी आयत है, ये सूरह सब बच्चों को भी याद होंगी। देखिए अब हमको मतलब ही मालूम नहीं, तो हम क्या करते हैं, बरसों से पढ़ रहे हैं। तो मगर हमको मालूम नहीं है तो इसकी एंजॉय नहीं करते हम, उसकी ब्यूटी को, उसकी अहमियत को, अल्लाह की। तो ये कुरान की 112वीं आयत है, 12वें सूरा है। और ये कितने सूर है बेटे? कुरान में 114 सूर है टोटल। उसमें से ये आखिरी तीसवें पारे की 112वीं सूरत है ये। आप नंबर लगाएंगे तो इसके बाद 113, 114, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक आता, कुल औज़ु बिरब्बिन नास आता। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइम तेजी से जा रहा है, आगे बढ़े, बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड। अब प्रॉफिटहुड, प्रॉफिट क्यों जरूरी है? प्रॉफिट के पे ईमान लाना क्यों जरूरी है? उनकी बात क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि वो अल्लाह के मैसेंजर है। प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर। और मैसेंजर ने क्या किया? ये कुरान की बातों को अमल करके दिखाया दुनिया में। उन्होंने ये बताया कि भाई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप अगर खुदा के ऊपर ईमान रखते,
और उसकी किताब पे ईमान रखते हैं और अच्छे अमल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी देखो, मैं भी इंसान हूं, मैंने ये अमल करके दिखाया आपको। और दूसरी बहुत अहम बात एक मैं आपको बताना चाहता, लोग फाउंडर ऑफ इस्लाम को मोहम्मद कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते। ऐसा नहीं है। इस्लाम और पैगंबर कितने आए? 1,44,000 1,24,000 पैगंबर है टोटल दुनिया में। कहां से शुरू हो रहे हैं? अदर एडम से। अदर एडम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिरी पैगंबर क्यों बोल रहे हैं आप? तो अल्लाह ने डिसाइड किया ये कि अब पैगंबर नहीं आएगा, मतलब अब क़यामत आएगी, अब पैगंबर आने का सिलसिला खत्म। नो प्रॉफिट विल कम नाउ। देन हाउ यू विल बी गाइडेड नाउ फॉर गुड थिंग्स? यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कुरान, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ हदीस। अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ दिया हमने। हमने क्या किए? हदीस को भी छोड़ दिए। हदीस का तो हमको मालूम ही नहीं है कौन सी अच्छी किताब है। बुखारी, इमाम बुखारी की एक किताब है हदीस की, वो आप घर में लाओ और उसको पढ़ो, वो ऑथेंटिक है बहुत। कुरान ऑथेंटिक है। इस पे रिसर्च हुआ जर्मनी में कि ये प्रूव करने के लिए कि इसको लिखा गया किसी के हाथ से, पैगंबर के हाथ से लिखा गया। तो क्या होता, जैसे जैसे टाइम गुजरता, 1400 बरस हो गया, ये रिसर्च हुआ 50-60 साल पहले की बात, 100 साल पहले की बात बता रहा मैं आपको। तो उन्होंने क्या किए टू प्रूव, बहरहाल वो तो नेगेटिव अप्रोच था उनका जर्मनी में, कि ये प्रूव करना था कि ये कुरान लिखी हुई है, अल्लाह की तरफ से नहीं आई। तो उन्होंने बहुत सारे किताबें जमा किए। कैसा जमा किया उन्होंने? मुख्तलिफ इलाकों से जमा किए। मतलब एक कुरान जमा किया उन्होंने, सबसे ऑथेंटिक जो पुराना हजरत उस्मान के जमाने का, 1400 बरस पहले का, ये इस पे लिखा हुआ है वो, इस पे चमड़े पर, वो अभी है इस्तांबुल की पास यूनिवर्सिटी में, उसका म्यूजियम में है। दूसरा फिर उन्होंने जमा किए एकदम अलग मुकाम से, तीसरे अफ्रीका से, तीसरा इंडिया से, चौथा, तो उन्होंने एक हर्फ का फर्क नहीं पाए। ये पहला प्रूफ है कि ये असली किताब है। दूसरी बात, इसका जो ब्यूटी है कुरान की, जो मेरा ख्याल है, मैं तो कहूंगा कि करोड़ों लोग इसके हाफिज है। हाफिज का मतलब समझते हैं आप? दे आर रिमेंबर होल बुक। आप मुझे बताइए कि कौन सी किताब है जो किसी बंदे को पूरी की पूरी याद है दुनिया की? एक भी आपको बंदा नहीं मिलेगा जिसको पूरी किताब है सिवाय कुरान के। ये भी मेरा ख्याल है खुदा की तरफ से अल्लाह ने इंतजाम किया कुरान को हिफाजत करने का, कि उसने दिलों में उतार दिया लोगों के। अब उसको बदलने वाला कोई नहीं है, बदल नहीं सकता कोई, क्योंकि वो रिमेम्बर्ड है। 1400 बरस से हाफिज चले आ रहे हैं। और हिफ्स करना बहुत अच्छी बात हमारे पास है, हमारी इस मुस्लिम सोसाइटी में, कि कई लोग हाफिज मिलेंगे आपको। तो उसके बाद रिसालत क्यों जरूरी है? उसमें एक सूरत है जो सूरह निसा है, उसकी आयत नंबर 59 है, देखिए आप उसका मतलब क्या है। यू यू हु हैव बिलीव्ड ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू। यानी आपको अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करना है, उनके हुक्मों को मानना है, या फिर अथॉरिटी जो है उनका हुक्म, जैसे खलीफा है या हमारा कोई सदर है, उसकी बात सुनना है। वो बगैर इस्लाम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू, इफ यू disagree over anything, refer it to Allah and the messenger. If you should believe in Allah and the last day, that is the best way and best in result. क्या बात है, देखिए आप कितनी अच्छी आयत है कि आपको आखिरी जो आखिरत आएगी, जो क़यामत का दिन होगा, उस पर भी आपको भरोसा रखना है, जहाँ हिसाब किताब होगा। रसूल पे ईमान लाना है, रसूल जो बात कहे सही है, और जो कुरान में बात सही लिखी हुई है, अल्लाह की जो बात है, वो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, बहुत फेमस ये ऊपर की आयत का मैंने अरबी ट्रांसलेट किया, मैंने कुरान की मैंने पढ़ा आयत वो, कि आपको खुदा की और उसके रसूल की इताअत करना है, तो आप अच्छे रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है, देखिए आप चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा। ये अपने पहले पारे के पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, तीसरे पारे के खत्म के बाद चौथे पारे में ये शुरू हो जाती है ये सूरा निसा। तो आप देख सकते हैं वहां जाके आप। और आपको एक चीज और मैं इसमें अहमियत देना चाहता कि ये जो पैगंबर जो आए आदम अलैहिस्सलाम से लेके, तो आपने मुख्तलिफ नाम, जो कुछ फेमस पैगंबर है कुछ, उनके नाम आपको मालूम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वगैरह वगैरह। तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी एक मिडिल पार्ट है, उसमें एक तूफान आया जिसमें सारी दुनिया को खत्म कर दिया था अल्लाह ने। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद से और शुरू हुई दुनिया। तो इस तरह से वो उसकी वो किस्तें बिठा के उनको बचा लिया गया था, उनके साथ के लोगों को। तो वो जो बचे लोग वो आगे बढ़े फिर, तो इसलिए उसको
यानी आदम सानी भी कहा जाता है, इसलिए ये दूसरे आदम, पहले आदम के ज़माने से लोग पैदा हुए, फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से पैदा हुए, फिर बहुत पैगम्बर है, मैं नाम अपने पास वक्त नहीं है, नहीं तो उसकी मैं शिजरे वाइज बताना चाहता था आपको कि किसके ज़माने में क्या हुआ, किसके ज़माने में क्या हुआ, फिर होते 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 फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अब ये आखिरी पैगम्बर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, तो आप समझ गए होंगे। अब जो है आखिरत, आखिरत के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये क्या है। ये जो है जजमेंट डे या क़यामत, इसको मुख्तलिफ अंदाज से लोग पूरी कुरान में ये चैप्टर आए हुए हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 99 सूरह जिलजाल, ये देखिए आखिरी पारे में आया थे। दिलदाल जो है आखिरी सूरा, ये आखिरी बोले तो आखिरी पारे में है। ये टोटल 114 है आयतें, सूरे 114 है, उसमें से ये 99 नंबर की सूरा है। इसमें क्या कह रहा है अल्लाह ताला, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, व्हेन द अर्थ इज शेकन विथ इट्स फाइनल अर्थक्वेक, यानी आखिरी में क्या होगा, एक अर्थक्वेक आएगा बहुत जोर से, क़यामत जब होने बर्पा होगी तो। एंड व्हेन द अर्थ थ्रोज आउट इट्स बर्डन एंड मैन विल से व्हाट इज द मैटर विथ इट, यानी इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। तो क्या करे, वहां पे क्या होगा कि वो बोली क्या हो रहा है, इंसान पूछेगा, तो जमीन कहेगी मैं मुझे हुक्म दिया गया है। और उसके बाद क्या होगा, दैट डे इट विल डिक्लेयर इट्स इंफॉर्मेशन ऑल दैट हैपेंड ओवर इट, गुड और एविल। देखिए ये बहुत अच्छी आयत है, यानी उस दिन क्या होगा, जमीन बयान करेगी उस पर क्या क्या लोगों ने गुनाह किए, और जबान बंद कर देगा। मैं समझो बंदे से पूछेंगे तूने क्या किया बता, तो जमीन बोलेगी उसने ये किया। अभी आज की दुनिया में ये समझना बहुत आसान है। 1400 साल पहले हमारे साहबा कितने ईमान वाले लोग थे, देखिए आप, उनको रसूल ने कहा ये आयत उतरी, उन्होंने ईमान ला ली। आज का इंसान तो सवालत करता था, कैसे जमीन बोलेगी। भाई जमीन क्या है, ये भी एक चिप है, या यूं समझ लीजिए एक डिस्क है जिसपे रिकॉर्ड हो रहे बहुत सारी चीजें, और उस दिन अल्लाह उसको हुक्म देगा। अभी हमारी हमारी डिस्क क्या है, एलिमेंट से है ना सब उसमें, कोई जानदार है क्या वो, लेकिन वो बोलती, देखिए आप कंप्यूटर में डालने के बाद या आप अंदर पेन ड्राइव में आप डालने के बाद क्या है वो। तो ये ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा कि जमीन बयान करेगी। तो इंसान बोलेगा ये क्या हो रहा है, तो जमीन कहेगी मुझे ये बोलने का ऑर्डर दिया गया है। और उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, दैट डे इट विल डिक्लेयर इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट all what happened over it of good or evil because your Lord has inspired it। क्या क्या हुआ उसके ऊपर बयान करेगी, क्योंकि अल्लाह ने उसको बोलने का हुक्म दिया। That day mankind will proceed in scattered group that they may be shown their deeds। उसके बाद इंसान एक मैदान में जमा किए जाएंगे, मुख्तलिफ ग्रुप में आगे बढ़ेंगे। So whosoever does good equal to the weight of an atom shall see it, and whosoever does evil equal to the weight of an atom shall see it। ومن يعمल مثقال ذرة خيرا يره वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। देखिए आप, मिस्काल लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कितना शानदार लफ्ज है अरबी का ये। उस जमाने में एटम की मालूमात नहीं हुई थी 14 साल पहले, पर कुरान में वो लफ्ज आया एटम का, कि एटम के बराबर भी अगर किसी ने नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और एटम के बराबर जिसने बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा, यानी वो हिसाब किताब का दिन है। तो ये चीजों पे ईमान अगर आपका है तो आप अच्छे काम कर सकते हैं। अगर ये इस पे ईमान नहीं है आपका तो आप अच्छे काम कर ही नहीं सकते। और देखिए आप अच्छे काम करने के लिए एक्सपेक्ट क्या होता है, बहुत शानदार चीज हमको इस्लाम देता है ये, कि आप अच्छा काम अल्लाह के लिए करो, उसका जवाब तुम किसी ने नहीं दिया समझो तो भूल जाओ, आपने अल्लाह के लिए किए। डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत कम लोग होते जो इल्लल एहसान बिल एहसान होते, एहसान का बदला एहसान से चुकाते। कुछ तो ऐसे मिलेंगे आपको दुनिया में कि आपके एहसान का बदला वो बुरे से चुकाएंगे, तो भी उनको माफ कर दो, दिल पे मत लो। दिल पे लेंगे तो आपका स्वाब चले जाएगा, आप बोलेंगे इसके लिए किए थे कि आपने, कि वो मेरे साथ बाद में अच्छा सलूक करे। अच्छा सलूक करा उसकी मर्जी, अल्लाह उसको जजा दे, लेकिन अच्छा सलूक नहीं किया समझो तो उसको माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद as a human being, that's why we have to progress spiritually as well as materialistically. To progress spiritually, strong belief in God they must. We are accountable for our deeds, small or big, in front of God on the judgment day. These concepts are mentioned in various religions, not only in Quran, various religions, although this concept is there, but people have forgotten this.
दे थिंक दैट दिस, किसने देखा आगे क्या होगा, ऐसे लोग बोलते मुसलमान भी। मैं तो बहुत, मैं लरस जाता है जुमला जब उनसे सुनता। भाई कम से कम ऐसी बातें मत कहो, अल्लाह से दुआ करो कि हमारे गुनाहों को माफ करे अल्लाह ताला, मगर ये तो मत बोलो। मतलब आप खारिज हो रहे इस्लाम से ये बोल के किसने देखा, क्या मतलब है ये है 100% होगा ये। और देखिए आसार भी दिख रहे हैं अभी तो वैसा होने के, क़यामत के करीब होने के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, अब इसके बाद नबी नहीं आएगा, तो नहीं आया, देखिए आप। तो ये जो है बातें आपको ये मानना पड़ेगा। टाइम हमारा तेजी से गुजर रहा, मैं आगे बढ़ता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियलिस्टिक आल्सो। टू, इस्लाम ने कमाने को मना नहीं किया, आप कमाओ, लेकिन जायज तौर से कमाओ। उसमें उसमें दो तीन चीजों का लिहाज रखो कि नाजायज तौर से पैसा नहीं आना चाहिए, किसी का हक हमने मारना नहीं चाहिए। और इसी को मत समझो सब कुछ। इसको क्या होता, बाद वक्त लोग पैसे को सब कुछ समझ लेते, तो क्या प्रॉब्लम आती उनको, बोलिए आप। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती, वो सब कुछ भूल जाते, पैसे के पीछे भागते रहते, बस ना फैमिली को देखते, ना किसी रिश्तेदार को देखते। उनके नजर में फोकस होता खाली पैसा कैसा, और ये मर जाते, क्योंकि मौत तो आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या शानदार आयत है भी। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में कि जितने जानदार है उनको मरना है, तो इसलिए मुसलमान जो है डरता भी नहीं मौत से, और मौत को गले भी नहीं लगाता। मौत को बहुत खुशी खुशी गले लगाता, लेकिन खुदकशी नहीं करता। ये खुदकशी भी डिप्रेशन का अंदाज है। लोग देखिए, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए। समझो आपको कुछ चीज हासिल नहीं हुई, खुदा ना खास्ता समझिए, तो लोग मर जाते। फर्स्ट क्लास में यहाँ मर गए, रिजल्ट अच्छा नहीं यहाँ मर गए, नौकरी नहीं मिली मर गए, मैंने इतनी मेहनत किया था, क्या फायदा मेरी जिंदगी। तो इंसान मुसलमान बुजदिल नहीं होता, इंसान को बुजदिल नहीं होना चाहिए। जान अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आप गुनाहगार होंगे आप अगर आप खत्म करते अपनी। बहादुर लोग, करेजियस लोग फाइट करते हैं और उन हालात में से निकलते बाहर, देखिए आप, और सीखते बहुत। देखिए आप, जब आदमी आफत आती तो वो सीखता ही बहुत। जो बच्चे गरीब होते, जिनको स्ट्रगलिंग होता, वही आगे बढ़ते, आप देखेंगे। अमीरों के बच्चे नहीं बढ़ते, वो स्पून लेके पैदा होते, तो वो उनमें कोई लड़ने की, मैं आप देखिए, कोई आपको एक्टर्स में कोई बच्चा डॉक्टर मिला क्या आपको, इंजीनियर मिला क्या, 7वीं 8वीं 9वीं बस छोड़ देते पढ़ना, उसके बाद जाते नहीं। आप देखिए मिसाल मेरे सामने मौजूद है। क्योंकि बहुत आसाइश आप अपने बच्चों को देंगे, बहुत आप आराम अपने बच्चों को देंगे, तो भी वो कुछ हासिल नहीं करेंगे। हासिल करने के लिए स्ट्रगलिंग उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो स्ट्रगल करता है, वो कोशिश करता है, तो। और देखिए आप, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। बाबा साहब अंबेडकर इंग्लैंड गए, बहुत गरीब घर के बच्चे थे वो। यहाँ तक कि छूत छात का इतना खराब निजाम था वो जमाने में कि टीचर उनको क्लास में नहीं आने देता था, तो वो बाहर खड़े खड़े लेक्चर सुनते थे अपना। और घर में दिया जलाने के लिए उनके पास तेल भी नहीं होता था, तो वो जो है पोल के पास पढ़ जाके पढ़ते थे, और मराठी मीडियम के थे। ये भी देखिए आप, बहुत हमारे बच्चों में कंसेप्ट है कि इंग्लिश मीडियम से रहा तो मेडिकल में जाएगा। नो, इट इज योर विल, इट इज योर विश, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ये आपके अंदर स्ट्रांग जम गया। देखिए कुछ बच्चों को क्या होता है, उनका शऊर बेदार करना पड़ता है। वो समझ में नहीं आता उसकी इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ता नहीं इसलिए, हालांकि बहुत होशियार होता। तो उसका शऊर बेदार करो आप, और अपनी कोशिश करो कि उसका शऊर जो है, बहुत अच्छा लफ्ज है उर्दू का शऊर। कीप इन फ्रंट ऑफ हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ, यू सी, मेडिसिन, इम्पोर्टेंट ऑफ आईएएस, देन ओनली ही विल ट्राई टू अचीव इट। नो, अच्छा परसेंटेज ला, अच्छा परसेंटेज ला मत बोलो उसको, उसको बोलो ये क्यों लाना है तेरे को अच्छा परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज इसलिए लाना है कि ये तेरी जिंदगी आएगी, हम तो साथ नहीं देने वाले तेरा जिंदगी भर। तेरे को अपने आप को स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिए कि डिप्रेशन में मतलब बच्चे को हमेशा ऐसा मत बोलो क्या किया तूने, कुछ भी नहीं है तेरे पास। उसको मोटिवेट करो। उसको आप डिप्रेस करेंगे तो वो पढ़ना छोड़ देगा। ऐसे भी स्टेज आती है कुछ लोगों में, इतना डिप्रेस करता है उसको टीचर भी, और क्या करेगा तू, तेरे पे है क्या कोई दम। ऐसी बातें मत करो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बच्ची के साथ। नहीं तुम बहुत अच्छा करे बोलो, खराब भी किया तो कोई बात नहीं, गिरते हैं शहतवारी मैदान जंग में। जो आदमी लड़ने जाएगा वो गिरेगा भी ना। उसमें ऐसा जरूरी थोड़ी कि वो हमेशा घोड़े पे बैठे रहे, गिरना गिरना ही पड़ता उसको, जख्म भी आते उसको। हजरत खालिद बिन वलीद को 80 जख्म आए थे, बड़े बहादुर आदमी थे। अल्लाह ने उनको शहीद नहीं किया, उनको अपनी मौत से इंतकाल हुए वो, लेकिन वो कोशिश किए पूरा लड़ने में और जीतने की। और जो जीते लोग, वो स्ट्रांग विल पावर से जीते।
आपको ऐसी मिसाल मिली कोई फौज की कि किश्तियां जला दे रहे? तारिक बिन जियाद का बहुत मशहूर वाक़या है, जब आप पता करने गए स्पेन को तो वहां समंदर था, तो आपने बोले अपने कश्तियां जला दो, क्योंकि फौज 1 लाख थी सामने, इनके पास हार्डली 40-50 हज़ार लोग थे बस। तो उन्होंने बोले पूरे जहाज जला दो, या तो हमको शहीद होना है या तो हमको गाजी बनना है। अब देखिए आप क्या क्या मोटिवेशन है ये। और वो भी क्या पक्के ईमान वाले थे। और क्या बोले हजरत तारिक बिन जियाद ने, बड़े साहब, बड़े तबा ताबईन में से वो, बाकी खलीफाओं के है वो, हुजूर हुजूर के जमाने के नहीं है। उन्होंने बोले कि आपको ये जीतना है, बस कुछ भी हो जाओ, या तो गाजी बन के जियो या तो शहीद हो जाओ। और आगे रहते थे वो फौज में अपने, पीछे नहीं रहते थे। आज के जनरल, आज के कर्नल के रहते, हमारे आज के जनरल पीछे रहते, समझे कि तुम आगे नहीं जाते, क्योंकि उनको उनको ये जज्बा था, शहादत का जज्बा था एक। इसलिए वो ऐसा तीर के टाइप में लड़ते थे। वो तीर के जो नोक होती थे, आप देख, ऐसी फौज का नक्शा होता था आमतौर से कि सामने सिपह सालार रहता था, बाजू से साहब तीर जा रहा, इधर से तीर जा रहा। खैर वो जर्रे बख्तर पहनते थे और अल्लाह की मदद भी थी उनके साथ, तो वो शहीद नहीं हुए। लेकिन जिगर चाहिए ना, जिगर चाहिए होता है ऐसा करने को। नहीं तो कर्नल साहब बोलते तो मैं पीछे हूँ, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसलिए फैसले इतने हो रहे आज जंगों में, सालों सालों से लोग लड़े। आप देखिए, नाम लेना नहीं चाहता, आप जानते, सालों से जंग हो रही साहब, मगर कोई फैसले ही नहीं। इतने बड़े आप मशहूर कंट्री है, आपका इतना सब कुछ है, मगर मरना नहीं चाहते लोग, मौत से खौफ खाते, इसलिए पता नहीं होता जल्दी से कोई चीज। बहरहाल, तो अभी आपको क्या करना है कि कुरान से नॉलेज हासिल करना है, और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसके भी सोली ऑन, अभी ये जो सिस्टम बहुत खराब है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्यों, मैं टीचर में बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें अच्छी बातें बताई नहीं जाती। मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा चले जाऊंगा, दूसरे साहब आएंगे फिजिक्स पढ़ाएंगे चले जाएंगे, तीसरे साहब आएंगे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे चले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं बोलेगा भाई अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, कोई नहीं बोलेगा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, कोई नहीं बोलेगा अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने टीचर की इज्जत करो, कोई नहीं बोलेगा। कोई आपने सुने कभी क्लास में कि बहुत कम टीचर रहेंगे जो बोल देते हैं। यानी कभी कभी मैं तो बहुत बोलता था क्लास में इस बारे में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और बच्चे मुझे याद करते हैं इस वास्ते आज भी वो लेटर लिखते हैं। एक बच्चे का मेरे को इसमें आया था मैसेज, मैं मिसाल के लिए बोल रहा हूँ आपको, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, कि आपको एक सबक मिले। वो नॉर्वे में है, वो साइंटिस्ट है, मेरे हमारे पास एमएससी किया था पुणे कॉलेज से। उसने लिखा कि सर, हैप्पी टीचर्स डे। तो मैंने लिखा भाई, इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड स्टिल यू रिमेम्बर मी, दैट इज समथिंग ग्रेट। 9 साल के बाद उसका हर साल आता, तो 9वें साल में आया, तो मैंने उसको लिखा अभी भी आप मुझे याद करते, बहुत बड़ी बात है। उसने क्या जवाब दिया मालूम मुझे, मैं फखर से बोलता इसलिए वो जवाब को, उसने बोला सर, यू आर नॉट टॉट अस ओनली केमिस्ट्री, यू आर नर्चर्ड अस आल्सो। आपने मुझे डेवलप किए, मुझे मालूमात नहीं थी बहुत सारी जिंदगी के, आपने जो बातें बताई क्लास में मैंने वो बांध के रखा था, तो मुझे उसका बहुत फायदा हो रहा है। देखिए, आप खाली पढ़ने से अच्छा इंसान नहीं बन जाता। ये जो हमारी एजुकेशन है, ये मैं एक लफ्ज यूज करता हूं इसलिए, ये हुनर है, ये इल्म नहीं है। असल इल्म कौन सा है बेटे? असल इल्म कुरान का है, असल इल्म हदीस का है। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं आज, ये पैसे कमाने के लिए हम ये करें, ये डिग्री लिए, डिग्री डिग्री का मतलब ये हरगिज नहीं कि वो अच्छा इंसान है। बताइए मुझे, मैं प्रूफ से बोलता हूं आपको। इसलिए क्या हो रहा अभी, नॉलेज जो आपको लेना है तो वो कुरान से लो, आपका अच्छा कैरेक्टर बनाओ, अच्छी आपकी पर्सनैलिटी बनाओ, ये सब आपको दीन की बातों पे अमल करने से आएगा, खाली डिग्री लेने से नहीं आएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा, आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपने एजुकेशन सिस्टम में हमको चेंज लाना पड़ेगा। अपने एजुकेशन सिस्टम में अपने को ये चीजें ऐड करना पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको घर में ये चीजें ऐड करना पड़ेगी एज ए पेरेंट्स। तो इसका एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्या हो रहा है, ये खराबी होने से हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ए पोस्ट ग्रेजुएट इज क्रिमिनल, बहुत बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हैकिंग चल रही है जो आजकल, लोग लूट रहे इस पे, कंप्यूटर पे। तो क्या हो रहा है देखिए आप, उससे कंप्यूटर से कि लोग 25,000 रुपये निकल गए मेरे आज। बैंक बेचारी हमारे पास काम वाली है, वो रोते हुए आ गई, बोले उसने बोला ये दबाओ, मैंने वो दबाई, पैसे मिल जाएंगे तुमको। मेरे पैसे 25,000 निकल गए बोले। अब बताइए, वो बहुत लर्निंग आदमी है कि नहीं, कंप्यूटर का वाला जो हैकिंग कर रहा, वो ग्रेजुएट तो होगा कम से कम, बीसीएस तो होगा, बीएससी तो होगा, बीई तो होगा। क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का? और एक इंजीनियर करप्ट है, आप देखिए आप,
आपके उद्घाटन भी नहीं हो रहा तो पुल गिर जा रहा, क्या फायदे का ऐसा? ऐसा आपने पढ़े कि नहीं न्यूज में? सब उसमें करेस्पॉन्ड इन्वॉल्व है, मेन इंजीनियर साहब भी इन्वॉल्व है उसमें, लीडर साहब भी इन्वॉल्व है। ये कुछ उद्घाटन करके हटे पीछे तो मालूम हुआ गिर गया पुल। सही नहीं सका, वो बर्दाश्त नहीं कर सका आना जाना लोगों का। डॉक्टर की, आप तो मैंने पहले बता दिया आपको डॉक्टर कैसे है। देखिए आप, ए डॉक्टर इज इन्वॉल्व इन ए नोबल प्रोफेशन, मे बी ए थीफ ऑफ किडनी। आपको आपको एडमिट करा ऑपरेशन के लिए, और साथ में मालूम है ये किडनी चला, ये साहब को बाद में एडमिट करे किडनी के इससे, तो बोले साहब आपका किडनी तो पहले ही निकल गया। तो बोले यार मैं कम निकला, फिर उन्होंने याद किए, मालूम है कि एक किडनी भी जिंदा थे वो अब तक। एक किडनी उनका डॉक्टर ने, एक बदमाश डॉक्टर ने कब निकाल लिया, जब वो छोटे थे। उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया ही नहीं, उन्हें बोला उनको अपेंडिक्स का, बोला आपको अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स करके उनको पेट में दर्द हो रहा था उनके, तो अपेंडिक्स का नाम लिया और ऑपरेशन अपेंडिक्स हुआ ही नहीं। कौन सा ऑपरेशन कर लिया उन्हें? किडनी में किडनी निकालने का ऑपरेशन कर लिया, क्योंकि किडनी की कीमत बहुत मिलती बाजार में और उसको बिका जाता, बाहर बेचा जाता। तो और एक बहुत अहम बात मैं आपको, हमारे गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाई। तो क्या हो रहा, मोर ओवर देर इज करप्शन इन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। यानी वो पहले बोल रहा मैं आ रहा, देखो तुम जरा होशियार रहो। क्या है, तो एंटी करप्शन बनाए थे गाय के लिए, लेकिन खुदा का खौफ नहीं किसी को भी, खिदमत का जज्बा नहीं है किसी को भी, लोगों को बुराई से बचाने का जज्बा नहीं है किसी को भी, तो क्या हो रहा, उसमें भी करप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो the best method of bringing the value-based education is to impart the knowledge of religion in school. Particularly teaching of Islam can be learned through Quran and Hadith. Otherwise, try to make alternate arrangement. And if there is a will, there is a way. और इसको आप जरूरी समझ लो, जैसा आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने को कैसा मेहनत लेते, पेरेंट्स से मेरा, मैं मुखातिब हूँ अभी, कि आप रात को 3 बजे नंबर लगाते फॉर्म लेने को, सेंट विंसेंट का, बिशप का, और फिर पूरी कोशिश करते कि मेरा बच्चे का एडमिशन हो रहा है, वैसी कोशिश करते आप कुरान सिखाने के लिए, वैसी कोशिश करते आप हदीस, हदीस क्या है मालूम इन बच्चे को? तो हदीस का मतलब क्या है, मैं अगर मैं पूछूं आपसे तो बहुत कम बच्चे बोलेंगे। हदीस का मतलब होता है जो अल्लाह के रसूल ने बताए और जो लोग नोट करे, उसको हदीस बोलते हैं। अगर आपकी दिल में ख्वाहिश होगी, इफ देयर इज ए विल देयर इज अ वे। तो मैं आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता था वो यही थी कि सिर्फ डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं होगी। हमारी सोसाइटी अच्छी होगी दीन का इल्म हासिल करने से। हमको एक खिदमत गुजार डॉक्टर मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर मिलेगा, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर मिलेगा, तो ये खुद के लिए भी अच्छे होंगे, अपने घर के लिए भी अच्छे होंगे और अपने मुल्क के लिए भी अच्छे होंगे। एक अच्छा इंजीनियर, खुदा से डरने वाला इंजीनियर है, वो तो करप्शन नहीं, पुल नहीं गिरेंगे। एक अच्छा डॉक्टर है Sir, please repeat this part because तो you are कम not audible. पैसों में इलाज का ये नहीं पूछेगा तूने पैसे भरेगा पहले। बड़े बड़े ट्रस्ट क्या कर रहे हैं आप देखिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये लाखों रुपए का खर्च है वहां। आप कुछ भी चीज के लिए जाए, किसी के पास खिदमत का जज्बा नहीं है। एवरीबडी वांट टू अर्न, और नाम लिखे क्या, ट्रस्ट था, फलाना ट्रस्ट की तरफ से दवाखाना चलता। अरे ट्रस्ट नाम क्यों रख रहे आप बोलो ये। The opposite of motivation is depression. This is also very dangerous. That's why I included in my lecture this point also. Sometimes it may lead to suicide. Courageous people fight against the difficulties, problems, rather than killing themselves. These people are God fearing. They always pay thank to Almighty, Allah the Great. देखिए आप, डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है। डिप्रेशन में आदमी मरना चाहता और फिर मरने, वहां से समझे आग लगाया, फिर बोलता मुझे बचाओ। इट इज ए मोमेंटरी एंड ही डज सुसाइड और शी डज सुसाइड।
हम यहाँ पैदा हुए हैं तो मुकाबला करना है अपने को जिंदगी में, कुछ चीज हासिल नहीं हुई है समझो हमको जिंदगी में, तो वही चीज नहीं है, वो तो उससे भी अच्छे अच्छे चीजें होती, हमको मालूम नहीं रहता कभी कभी। तो यू ट्राई टू गेट दोज थिंग इंस्टेड ऑफ किलिंग योर सेल्फ। तो बी करेजियस। और डिफिकल्टीज और अच्छी बात है, जिंदगी में आना ये गेम ऑफ लाइफ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक आदमी शुरू से अच्छा रहा, कभी उसको डिफिकल्टीज आते हैं तो उसने करेज से उसको फेस करना चाहिए, इस बजाय के रोने के, बजाय के तकलीफ लेने के, बजाय के एक कोने में पड़ जाने के, किसी से बात नहीं कर रहे, सब डिप्रेशन में आ गए। और इसमें अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में आते मैंने देखा हूँ कि उनकी अगर कुछ चीज लॉस हो जाती, कोई उनका पैसा कोई खा लेता कोई उनका गलती से, तो वो उनको फिर ऊपर लाने को बहुत टाइम लगता, बहुत काउंसलिंग लगती, जब जाके वो आते। और लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला होता और जो आगे की जिंदगी जो आने वाली है उस पर ज्यादा भरोसा करता, वो डरता नहीं ये जिंदगी से। कोई बात नहीं, गुजर जाएगी जिंदगी तो, लेकिन मैं अल्लाह से डरते हुए गुजारूंगा, नाजायज पैसे की तरफ नहीं जाऊंगा, नाजायज पैसा मुझे नहीं चाहिए, और मैं अच्छा रहूं, क्योंकि कुल्ल नफ्स, सबको मरना तो एक दिन है, ही मौत से भी डरते हैं कुछ लोग बहुत, मौत का नाम मत लो लोग बोलते हैं। हेलो, हाँ तो भाई अभी आपका जो लेक्चर है ये अभी खत्म हो रहा हमारा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे की स्लाइड बता दिए, एक क्या है आगे की देख लेंगे। एक्नॉलेजमेंट है, हमारी वाइफ का मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सजेशन हमको दिए इस डिस्कशन में, तो मैं उनका भी थैंक लास्ट में, और थैंक यू वेरी मच। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Thank you, sir, for such a motivational lecture. Now, I request everyone, if they have any doubts, then one by one you can ask the questions. अभी आप क्वेश्चन अगर नहीं पूछे, दो बातें मैं कंक्लूड करता हूँ। एक ये कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया, या दूसरा है कि कुछ भी समझ में आया तो ऊपर से गया। तो अब क्वेश्चन तो निकलना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा हाँ, लेक्चर था माशाल्लाह आपका। और ये जो आपने एक बात इसमें कही, जो मेन इसका थीम मैं समझता हूँ कि हमें डॉक्टर्स इंजीनियर से सोसाइटी में नहीं चाहिए, हमें एक वुमेन डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए सोसाइटी में, क्या बात, जो बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी अच्छा, से अपना काम करे और क्या उससे बात, पूरे कौम को जो फायदा हो और सब पूरे दुनिया को फायदा हो उससे। तो ये क्या मतलब बात, मेरे लिए तो बहुत ये इसका टेक अवे है आज का, जो बच्चों ने अगर सुना है तो बहुत, उनके लिए यस, ये मैसेज है। यस, यस, बहुत अच्छा। अगर ये मेरे बच्चों ने ये मेरा ले लिया मैसेज, तो मैं समझूंगा कि मेरा कामयाब होगी मेरी मेहनत। तो फिर खत्म करें सही। Ji, anyone else has any questions, or anyone else wants to comment on this lecture? Okay, so thank you, sir, for this wonderful lecture and this wonderful motivational talk. So we'll be ending this session motivational talk today over here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. थैंक यू वालेकुम वेरी मच, अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर।